Hello everyone. Today we are going to discuss about a sample paper where we will basically solve the questions and discuss how to score better marks. So let's have discussion on this. This is the question paper. Paper pattern I have already discussed with you all that we will be having the 5 sections. In the previous video I discussed about it. Today we are going to discuss about this question paper where section A is having 20 questions, section B is having 5 questions of 2 marks each, section C is having 7 questions of 3 marks each, section D will be having 2 case studies of 4 marks each, and the last section is section E where you will be having 3 questions of 5 marks each, but you will be having the choice over there. So let's start with the first question. The first question is, big holes in Swiss cheese are made by us. How it is made that they are asking. So as we have already discussed in this microbe in human welfare chapter, that Swiss cheese is basically a kind of cheese which is used by using a bacterium known as Propionibacterium shermani. Now this bacterium is producing what? It is producing large amount of carbon dioxide. So if you remember correct answer, then fine. Otherwise you can delete the options which are wrong. Automatically you will get the correct one. The bacterium that produces methane gas, we cannot take that. So this option where carbon dioxide is released and it is creating pores over there, because when carbon dioxide is coming out, it leaves behind pores. So this option is correct with the name Propionibacterium shermani. You should remember this name. Now fungus is not there, so this option is also wrong. Every option we will discuss and compare, then you will get the best option. Question number 2. Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? From chapter Reproductive Health. Here first, hormonal contraceptive which is used as the pills. It may prevent or retard the entry of sperm, prevent ovulation and fertilization. Absolutely right. Vasectomy, where the vas deferens of the male is cut, some part of it is cut and tied, which is preventing the passage of the sperm. So this option is wrong. So it prevents what? Vasectomy will interfere with the further movement or passage of sperm. So the correct answer is this one, which is wrong match over here. We have to read question very carefully, which does not give, which is wrong option they are asking. So this option we are getting here. Let's see two more. Barrier method, prevent fertilization by preventing the mixing of two body fluids. Intrauterine devices inserted in the uterus, it increases the phagocytosis of sperm, or reducing the mobility, because copper ion, if you remember, it is reducing the mobility of the sperm, thus fertilization capacity of sperm is also reduced. So these three options are correct. So we have to take which does not define the action of contraceptive. So our answer should be B. In objective question, we have to give more time while studying, because if you are taking it wrong, you will be losing 1 mark, complete full 1 mark. There is no option of a step marking. So you have to read it carefully. Next, we are moving with question number 3. In question number 3, according to Darwin's theory of natural selection, fitness refers to an organism's ability to successfully reproduce and pass on its genes to next generation. Absolutely right. What does fitness? They are asking about which kind of fitness they are talking about. Physical fitness, reproductive fitness, mental fitness. Let's see the options. The number of species in a community, the useful variation in the population, the strength of an individual, or the reproductive fitness of the organism. If you remember,
The postulates of Darwin says the first is enormous fertility. That means if any organism is reproductively fit, it can increase its number. So here Darwin is talking about the reproductive fitness. Next, question number 4. Study the following figure and identify the enzymes involved in step 1 and step 2. So see carefully what is step 1 over here. Step 1, like these are the vector DNA, this is the vector DNA and this is foreign DNA. First we are cutting it. So for cutting DNA, which enzyme is used? You are right that it should be restriction enzyme. And which restriction enzyme? They are asking the name of the restriction enzyme. So this you have to remember. It is EcoR1 enzyme, which is cutting at the palindromic sequence GAATTC. So you can see here, although it is not very clear, but in this one NCERT book, you can see this diagram. Then after cutting, these DNA segments are linked together. So for joining these two fragments of DNA, we are using DNA ligase. So both the answers are clear to you, I guess, conceptual. We are getting E. coli enzyme, which this enzyme is extracted from E. coli bacterium, right? How it is named, we will discuss later on. So here the name of the enzyme will be EcoR1 and the DNA ligase. So you have to see it is given in which option? It is given in the option A. Rest of the options are not applicable. Read question carefully. No need to be afraid of the long questions. Dr. Mehra is performing a gene cloning experiment using PBR322 plasmid. She wants to insert a foreign DNA into the tetracycline resistant. So she is basically inserting a donor DNA in this particular region where tetracycline resistant gene is present to create recombinant bacteria. To do this, she needs to select a restriction endonuclease that recognizes the site within TET genes. So basically, she is asking about where these TET genes are located and which enzyme you will use to cut this. Here the diagram of PBR322 should be very clear to you, which I have given you at the last. So I'll be showing you the diagram of PBR322. So this PBR322 diagram is very important for board examination. It comes for 3 marks as well. So you have to see which enzyme is required over here. In this particular diagram for TET resistance, if you can see, this is the TET resistance. So if you want to remove this particular gene, which enzyme you are supposed to use? You have to use enzyme BAMH1. And the second diagram which I have taken over here from NCERT itself, the diagram which I was talking about, this is vector DNA, this is foreign DNA. It is first cut by using the enzyme EcoR1, hope it is clear, and then it is joined together by the enzyme which is DNA ligase. This was the previous question which I have discussed few minutes back, right? Next we are moving back to the question number 4. So here, cut and insert the foreign gene. Which one of the following restriction enzyme Dr. Mehta used successfully to perform insertion in the tetracycline resistant gene? तो क्वेश्चन समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फिर आराम से आप ऑप्शन देख सकते हैं अगर आपको डायग्राम याद है तो दिस इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जिसका डायरेक्ट आंसर होगा BAMH1. आई हैव शोन यू द डायग्राम आल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन. अगर आप स्पर्म फॉर्मेशन की बात करते हैं, आपको सेमिनिफेरस टिब्यूल का डायग्राम याद है, तो इन द डायग्राम ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल यू मस्ट हैव सीन that we are starting the process with the spermatogonia. तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन में स्पर्मेटोगोनिया से शुरू हो रहा है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. बाकी दोनों ऑप्शन और ऑप्शन डी ऑल्सो यू कैन सी.
ऑप्शन, तो पहले सेकंड ऑप्शन आपने, थर्ड ऑप्शन तो पहले ही काट के निकाल दिया। नाउ स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आना चाहिए था, स्पर्मेटोसाइट शब्द आना चाहिए, लेकिन स्पर्मेटोजोआ है, तो ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया। ये दोनों ऑप्शन बचते हैं अब, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोजोआ। यहाँ स्पर्मेटोजोआ पहले आ गया, यानी स्पर्म पहले बना, स्पर्मेटिड बाद में, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑलवेज कंपेयर बिफोर यू टेक द फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ यू रिमेंबर, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सर्कुलर स्पर्मेटिड्स बनते थे, आफ्टर स्पर्मेटिड्स यू आर हैविंग स्पर्मेटोजोआ। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 6। नेक्स्ट, द बायोमास available for consumption to heterotrophs and the rate of formation of new organic matter बाय कंज्यूमर। दो चीजें पूछ रहा है यहाँ पे। पहला उन्होंने पूछा कि वो बायोमास जो हेट्रोट्रॉफ्स के लिए अवेलेबल है, तो वो क्या होता है, आपको पता होगा, तीन शब्द हम लोग यूज कर रहे थे, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो है जो प्लांट ने सिंथेसाइज की, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो है जो बच गई आफ्टर यूटिलाइजेशन बाय द सेम प्लांट। तो ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इट इज अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर्स। तो पहला आंसर तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। दूसरा पूछ रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो अगर आपको याद होगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय प्रोड्यूसर इन पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट एरिया, वो था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जब आप सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो वो क्या है, rate of production of biomass by consumers in per unit area and per unit time. So hope you have got your answer, NPP and secondary productivity. तो कहाँ है ये आंसर, net primary productivity and secondary productivity respectively. Clear? Next we are moving to question number 8. This is memory based question given in the diagram. Refer to the given table of contrasting traits in the pea plant studied by Mendel. Mendel ने 7 pair of contrasting characters दिए थे, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, you will be having 4 contrasting characters given over here. अब they are asking you the question on this, which of the given trait is incorrectly placed. Correct नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कौन सा trait आपको लगता है कि ठीक तरीके से प्लेस नहीं किया गया है। लेट्स हैव द लुक ऑफ दिस। सीड कलर, इसमें आपका सीड कलर में डोमिनेंट पॉड कलर होगा तो ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है, लेकिन सीड कलर में क्या है, येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव। फ्लावर में वॉयलेट इज डोमिनेंट, व्हाइट इज रिसेसिव। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, डोमिनेंट है, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड। ये वाला देखिए फोर्थ ऑप्शन में आपका जो टर्मिनल फ्लावर है, ठीक है, उसको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, which is terminal flower is the recessive trait whereas the axial flower is your dominant. तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा incorrectly matched है position of the flower में। तो आपको यहाँ पर पोजीशन ऑफ फ्लावर आप देख पा रहे हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसका आंसर जो है 1 and 4 होगा। Although this question is not very clear because अगर आपको dominant और recessive traits clear नहीं है, you will not be able to explain them. लेकिन as per the option आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो कोई एक ऑप्शन तो आपको लेना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन है C 1 and 4, जहां पर पोजीशन ऑफ फ्लावर, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो यू कैन सी दैट। ओके, नेक्स्ट है अर्नेस्ट चेन एंड व्हाट फ्लोरी कंट्रीब्यूशन वाज। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली पेनिसिलिन पे काम किया था, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। तो अगर आपको पेनिसिलिन, penicillin, penicillin was the antibiotic which was discovered by Alexander Fleming, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है, इसकी जो एक्टिविटी है, that was explained by and practical was done on this by these two scientists at the time of Second World War.
And for this act, these three, along with Alexander Fleming, Florey, and Chain, they have got Nobel Prize for this. They have treated the soldiers in the Second World War by this penicillin antibiotic. So answer should be establishing the potential of penicillin as an effective antibiotic. स्टेप्टोकाइनेज और इंसुलिन, ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, along with nicotine, cigarette smokers also have the intake of tars, phenols, hydrocarbons, arsenic and many other chemicals. Which of the following is not an effect of smoking tobacco? बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेट्स सी क्या डिस्कस कर रहे हैं। नैरोइंग और हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल इन द हार्ट एंड ब्रेन। It is true because it causes a kind of problem, coronary artery disease, which is leading to heart attack. So narrowing of the blood vessels, which is supplying blood to heart and brain, if that particular vessel will be having complication, it will lead to heart attack. Next, a higher frequency of respiratory infections. True. Emphysema, if you remember, the rate of respiration increases too much in case of the smokers because their alveoli are not getting the sufficient amount of surface area for exchange of gases. A higher risk of cancer, including cancer of lungs, mouth, larynx. We have seen lots of ads about it. It's true. None of these. So they are asking what is not an effect. Not an effect मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? None of these. Again a memory based question. What does the shape of given age pyramid? तो ये आपको क्या दिया गया है यहाँ पर? डायग्राम ऑफ एज पिरामिड है. It reflects about the growth status of the related population. प्री रिप्रोडक्टिव ऊपर दिया हुआ है यानी कि चिल्ड्रन, रिप्रोडक्टिव मतलब एडल्ट्स और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब ओल्ड। तो जहां पर नंबर ऑफ ओल्ड पर्सन लेस है, ठीक है। इसके बाद सॉरी ये मैंने उल्टा आपको बता दिया है। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे चाइल्ड, रिप्रोडक्टिव एज में क्या आ जाएंगे एडल्ट, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ओल्ड। तो आप क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ members which can reproduce is increasing at the base. तो इस तरह के पिरामिड को हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग, राइट। दूसरा पिरामिड जो आपका है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनशेप्ड है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव यानी जो चिल्ड्रन है उनका नंबर क्या है? कम है। एडल्ट्स जो है उनका नंबर ज्यादा है, और फिर जो ओल्ड है उनका नंबर कम है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये पिरामिड क्या है? डिक्लाइन पॉपुलेशन को शो करता है कि दीज एडल्ट्स, सपोज अ कपल इज हैविंग ओनली वन चाइल्ड व्हिच चाइना हैज फॉलोड, सो हियर दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दिस pyramid is decline. So expanding and decline, where you are having this point we cannot take, we will taking first expanding, second decline. So C option is correct. Next we are moving with the question number 12. Which of the following phenomenon was experimentally proved by Michelson and Stell? ये दो साइंटिस्ट थे जो डीएनए की डिस्कवरी पे काम कर रहे थे, सर्च ऑफ डीएनए मटेरियल। अगर आपको याद होगा, बाय यूजिंग सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट they explain the semi-conservative mechanism of replication, जिसके हिसाब से in these two strands of DNA only one strand is conserved and one strand is newly constructed. So semi-conservative का मतलब होता है कि एक strand जो पेरेंटल है वो कंजर्व होगा और एक नया बनेगा, right? So this diagram was given in NCERT. Go through it, but answer should be semi-conservative mechanism of replication. Now question 13 to 16 is reason assertion. Read it carefully. Offsite collection can be used to restock the depleted population and reinforce species in the wild
and restore degraded habitats. करेक्ट. हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन पढ़ते हैं. तो यहाँ पर ऑफ साइट कलेक्शन करने से हम इन चीजों को, इन स्पेशीज को जो कि एंडेंजर्ड हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं. अब रीजन क्या दे रहा है, इन सीटू कंजर्वेशन we refers to the conservation of endangered species in their natural habitat. यहाँ ऑफ साइट कलेक्शन की बात कर रहा है और यहाँ इन सीटू कंजर्वेशन की बात कर रहा है. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. तो हम लोग कौन सा पॉइंट ले लेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The introduction of Nile perch in the Lake Victoria caused catlids to become extinct. बिल्कुल सही बात है अगर आपने चैप्टर पढ़ा है. Nile perch is an indigenous species. अगर लोकल स्पीशीज होती तो ये एक्सटेंशन होता ही नहीं. ये एक एक्सोजिनस या एक्सोटिक स्पीशीज थी ईस्ट अफ्रीका की. तो इसमें रीजन जो है आपका वो गलत हो जाएगा. जहां असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है तो वो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी. फिर एक डायग्राम है, ध्यान से पढ़िए इसको. इस डायग्राम को पहले समझने की कोशिश करते हैं. ये प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है, दोनों सेम स्पेशीज के हैं. पहले P1 केस में क्या हो रहा है, P1 के केस में आपका सेम एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन सेम स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, तो P1 आपका ऑटोगैमी हो गया. P2 में क्या हो रहा है, एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं विच इज ऑफ सेम प्लांट. इसको हम गाइटनोगैमी कहते हैं. थर्ड केस में आप देख रहे हैं P3 में pollen grains are transferred with the help of an agent. कोई भी एक बी है वो पॉलिनेशन कर रही है. तो ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन. तीनों पॉलिनेशन आपने देख ली. डायग्राम देख करके ये क्लियर हो जाना चाहिए. क्वेश्चन देखते हैं. In the given diagram, two plants of the same species depict different types of pollination indicated by the labelings P1, P2, P3. Study this diagram and comment upon the appropriateness of assertion and reason. इसके ऊपर उन्होंने assertion और reason के क्वेश्चन बनाए हैं. ध्यान से पढ़ते हैं. पहला, P1 is a type of self pollination. मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सेम फ्लावर में हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. रीजन है, इन P1 complete flower is pollinated by its own pollen. Absolutely right. आप देख सकते हैं डायग्राम में इसी का pollen grain निकल करके इसी के स्टिग्मा को क्या कर रहा है, पॉलिनेट कर रहा है. ठीक है, एजेंट यूज भी हो रहा है तो भी सेम pollen grain जो है आपका क्या कर रहा है, इसको पॉलिनेट कर रहा है. तो यहाँ पे आपको बी को अवॉइड कर देना है. आपको बस ये देखना है कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे हो रहा है. तो क्या आंसर होना चाहिए, दोनों ही ठीक है. ठीक है, तो यहाँ पर both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है. Last question of objective reason assertion. Assertion है, biodiversity hotspots are the region which possess low level of species richness. Hotspot नाम यूज कर रहे हैं. ना एंडेमिज्म होता है. एंडेमिज्म का मतलब है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको क्या मिल रहे हैं, वहां पर वो स्पेशीज पाए जाते हैं. हाई डिग्री ऑफ रिचनेस, देखो यहाँ पर एक शब्द खाली गलत कर दिया. द हॉट स्पॉट्स आर द रीजन विच पोजेस लो. अगर आपने ये शब्द मिस किया आपका आंसर गलत हो जाएगा. लो लेवल ऑफ स्पेशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म. जब स्पेशीज रिचनेस लो है तो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म कैसे हो सकता है, इसलिए ये पॉइंट अपने आप में क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी, रॉन्ग है. टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड इज 34. एब्सोल्युटली राइट. तो यहाँ पर क्या है, आपका असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ, वेयर यू विल गेट 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स. तो टोटल ये आपके 10 मार्क्स की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, अब जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो यू हैव टू मेक श्योर कि हम लोग बहुत टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इसके ऊपर. मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. राइटिंग पार्ट की बात कर रही हूँ. राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्टिविटी
GPP एंड NPP एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कुछ समझ में नहीं आए तो सिर्फ डिफाइन कर दीजिए, ईच थिंग विल गिव यू हाफ मार्क एंड आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या है प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इन पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। पहले भी मैं बता चुकी हूँ। दो तरह की होती है आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेयर टोटल the rate of production of biomass by producer, the total amount of biomass produced is GPP, from which some amount is utilized by the plant for by the process of respiration for its growth and development. तो जो बच गया that is called as NPP. NPP is the amount of biomass which is left for the consumers to consume. So this you have to define simply, nothing else. And then secondary productivity is the rate of production of biomass by consumers in per unit area and per unit time. Don't change the words of the definition. When any of the definition is asked in the examination, try to write it exactly as given in CBSE NCERT book. State the difference between the first trophic level of the detritus food chain and the grazing food chain. यहाँ पर 1 mark you will get for this and 1 mark you will get for this. जिसमें आप comfortable हो आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं एक सिंगल सा। तो detritus food chain आपका स्टार्ट होता है हमेशा प्रोड्यूसर से। तो this you can simply write that it started with the producer where you will be having producer as a plant. Then this plant will be eaten by any of the insect. Insect is eaten by the frog and frog is eaten by the snake. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्या है, प्रोड्यूसर प्लांट है। जबकि आप डिट्रिटस फूड चेन की बात करते हैं तो वी आर स्टार्टिंग इट विद द डिट्रिटस। डिट्रिटस मतलब डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको ईट करता है या डिकम्पोज करता है, ब्रेक डाउन करता है पार्ट्स में, वो क्या है, डिट्रीटिवोर, अर्थवॉर्म्स एंड ऑल। फिर उसके बाद उसको बैक्टीरिया क्या करता है, डिकम्पोज करता है, तो डिकम्पोजर। तो इसका प्राइमरी लेवल क्या हो गया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल विल बी डिट्रिटस। तो दोनों डायग्राम बना के हाफ मार्क का डायग्राम और हाफ मार्क का एक्सप्लेनेशन, यू विल गेट फुल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। टॉलनेस ऑफ पी प्लांट इज डोमिनेंट ट्रेट, जानते हैं मंडल ने किया था। while dwarfness is the alternate recessive trait, correct. when a pure line का मतलब क्या होता है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। प्योर लाइन का मतलब यहाँ पे है कि आपने होमोजाइगस प्लांट ले लिया, ठीक है। होमोजाइगस प्लांट को क्रॉस करते हैं विद द प्योर लाइन ड्वार्फ, तो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ द टॉल प्लांट। सिर्फ टॉल प्लांट पूछ रहा है कि आपका फिनोटाइप पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट फिनोटाइप दिया है, जीनोटाइप पूछ रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टॉल प्लांट इन F2 विल बी हेट्रोजाइगस। कितने ऐसे हेट्रोजाइगस प्लांट आपको मिलेंगे F2 जनरेशन में, ये देखना है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपने टॉल प्लांट, होमोजाइगस टॉल प्लांट को लेंगे तो इट विल बी कैपिटल टी। इसको आपने क्रॉस किया स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट से। इनके गैमेट क्या हो जाएंगे, इनके गैमेट हो जाएंगे ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, इनके गैमेट हो जाएंगे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। जब इनको आप फ्यूज कराएंगे तो F1 जनरेशन आ जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस। लेकिन इसका रेस्ट डायग्राम हम इधर बना देते हैं। जब आप इन हेट्रोजाइगस को फर्दर क्रॉस करते हैं तो व्हाट विल यू गेट, ये आपसे F2 जनरेशन पूछ रहे हैं। ये जो निकला ये क्या है, ये F1 जनरेशन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करता है। जब आप प्रेट स्क्वायर बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर गैमीट्स को कैसे अरेंज करना है। कैपिटल टी, इसके भी फिर गैमेट बनेंगे F1 जनरेशन के। अगर आप गैमेट बनाएंगे you will get capital T here and small t here. Similarly this will also give you the capital T and the small t. तो यहाँ पर हम सपोज मेल के गैमेट ले लेते हैं कैपिटल T स्मॉल t, और दूसरे एक्सिस पे हम क्या करते हैं, फीमेल के गैमेट ले लेते हैं कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक है। जब आप कैपिटल टी ले रहे हैं यहाँ तो ये हो जाएगा कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट,
ये कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। तो एक तरीके से आपको पूरा ये बना करके दिखाना ही पड़ेगा। अब पूछ रहा है आपसे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं। तो आप देख सकते हैं 4 कॉलम है, तो हर कॉलम का वेटेज 25%। 25% आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है, 50% आपका हेट्रोजाइगस टॉल हो जाएगा, और 25% आपका होमोजाइगस ड्वार्फ हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन ने सिर्फ एक चीज आपसे पूछी है। नाउ हियर यू हैव टू ड्रॉ इट, ऑल्दो दे आर नॉट आस्किंग यू टू ड्रॉ। यहाँ पर एक शब्द उन्होंने यूज किया है गिव रीजन। तो रीजन के लिए आपको क्रॉस बनाना पड़ेगा। तो यू विल गेट 1 मार्क, और यू कैन से 1.5 मार्क for the cross, and just the percentage when you are writing that 50% because they are asking the what fraction। अच्छा फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, तो परसेंट को आप फ्रैक्शन में निकाल दीजिए। 1/2 of the total plants will be of हेट्रोजाइगस टाइप। तो इसके लिए आपको हाफ मार्क मिल जाएगा, और पूरा जो आप बनाते हैं क्रॉस उसके लिए 1.5 मार्क। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एक अल्टरनेट क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड। So here you have to use antirrhinum plant. We are using the first you need to define it, what is incomplete dominance, where the dominant trait is not able to express itself completely in F1 generation, and there will be masking of the trait. Clear? So in F1 generation, instead of getting the red plant, red flowers, you will be getting the pink. If you remember, homozygous dominant red, then white flower were crossed. So red has given you the gamete capital R, capital R. This is small r, small r. When it was crossed, the first thing which you have got and expected it as per the law of dominance, it should be red. But here instead of red, we were getting all the pink flowers, which explained this law of incomplete dominance. You have to complete this cross also. Here you see cross based question they have given. So again for the cross you will be getting 1.5 mark. You have to complete this F2 generation also over here, as you have done over here in the complete dominance. So here you will again get 25% you will get RR, 50% you will get capital R, small r, and 25% small r. Similarly, you will make as we have done for dominant, but here phenotype will be pink. So this shows that genotypic ratio as well as phenotypic ratio is same, that is 1:2:1. But in case of complete dominance, what was there? The phenotypic ratio was 3:1, because this is also tall and this is also tall, and genotypic ratio is 1:2:1. So genetics you have to take care of. You have to explain every question with the help of diagram. Move to question number 19. State the function of following in the cloning factor PBR322. I have shown you the diagram. If you remember the role of ORI, ORI stands for origin of replication. What is ORI? ORI stands for origin of replication or replicon. It is the site from where plasmid starts its replication, and it decides the copy number also. So if ORI is not there, replication will not start and we will not get the desired recombinant DNA. So here ORI, just one sentence you have to write, responsible for initiation या origin of replication, starts or replication. ROP is again a gene which is coding for a polypeptide, which is responsible for making its protein coat or gene, right? So this gene is responsible for making the protein or polypeptide, and this gene is responsible, so 1 mark. This gene is responsible for origin of replication. Let's move to question number 20. In question number 20, we have to see that a diagram is given and they are asking 2 questions on that. Again, 1 mark each you will get. The diagram is given right in front of you. This is the cross section of ovary, human ovary. They are asking which of the labeled structure is pre-birth structure, which is present in the fetus and is not formed thereafter. तो number of follicles अगर आपको पता होगा
कि when a child, female child is taking birth, she is having the fixed number of follicle which will keep on degrading. नंबर कम होता है, बढ़ता नहीं है. तो ये हमारे जब फीटस का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी समय हमारे फॉलिकल डेवलप होते हैं और फिर वो मियोसिस 1 के बाद अरेस्ट हो जाते हैं. तो ये ए स्ट्रक्चर जो है ये हमारा प्री बर्थ स्ट्रक्चर है, जो कि बाद में इंक्रीज नहीं होता है. इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एक सेंटेंस में. Which of the labeled structure respond to LH surge? ये आप जानते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल है और इसमें ये छोटा सा सेकेंडरी oocyte है. तो जब LH surge होता है बिकॉज ऑफ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हमारा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है यहाँ से, और ये रप्चर होने के बाद हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. क्लियर. एंड फर्टिलाइजेशन के पहले जो मियोसिस 2 कंप्लीट होना है दैट विल बी कंप्लीटेड इन द ओविडक्ट इटसेल्फ व्हेन स्पर्म enters in the zona pellucida. Hope you remember this. So just 1 and 1 mark you will get direct over here. Question number 21. A young boy when brought a pet dog home started to complain of watery eyes and running nose. उसको क्या हुआ, उसकी आंखों से पानी निकलने लगा. नॉर्मली भी हम कहते हैं अगर आंखों से पानी निकल रहा है या रनिंग नोज है तो एलर्जी हो गई है. ठीक है, तो उसको डॉग से क्या हुई, एलर्जी हो गई. द सिम्टम डिसअपियर्ड व्हेन द बॉय वाज केप्ट अवे फ्रॉम द पेट. कंफर्म हो गया कि उसको एलर्जी थी. नेम द टाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिस्पॉन्स. तो दो क्वेश्चन है, एक पूछ रहा है एंटीबॉडी बताओ, दूसरा पूछ रहा है वो कौन सा केमिकल है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो एंटीबॉडी आपको पता होना चाहिए कौन सी थी, इम्यूनोग्लोबिन ई. E for allergy, E for immunoglobulin E, antibody. Chemical histamine होता है. Histamine is the chemical which is responsible for these allergic reaction. To name only one drug, any one drug could be given to the boy for immediate relief. तो कौन सी ड्रग देंगे, एंटीहिस्टामिन दे दीजिए. अगर उसको हिस्टामिन का प्रॉब्लम है तो उसको क्या दीजिएगा, एंटीहिस्टामिन की ड्रग दे दीजिए. तो यहाँ पर यू विल गेट हाफ प्लस हाफ और ड्रग के लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा. ठीक है. राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, सपोज डिस्क्रिप्टिव है, आप श्योर नहीं है, तो बेहतर है जो क्वेश्चन श्योर है उसको एक्सप्लेन करें. ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड. इनेट का मतलब होता है सिंस बर्थ. द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट सिंस बर्थ which we have got from our parents is called as innate immunity. And acquired immunity is the immunity which we are developing after birth. तो पहला पॉइंट तो यही क्लियर हुआ कि एक आपको बाय बर्थ मिल रहा है वो इनेट है, और जो बर्थ के बाद आप डेवलप कर रहे हैं वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है. इनेट इम्यूनिटी आप गेन नहीं कर सकते, जैसे आपका स्किन हो गया, सलाइवा हो गया, HCl हो गया, ये सब ऑलरेडी आपकी बॉडी में है, WBC हो गया. तो दीज आर द थिंग्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी सिंस बर्थ. तो एग्जाम्पल देके यू कैन एक्सप्लेन कि इनेट इम्यूनिटी आपका बैरियर हो सकता है, साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, यू कैन राइट फ्यू नेम्स ओवर देयर. जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक आपका एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है. तो एक्टिव में आप क्या कर रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में यू आर इंजेक्टिंग द वैक्सीन. ठीक है, आप वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे हैं और वैक्सीन इंजेक्ट करके यू आर अटेनिंग द इम्यूनिटी. ठीक है. तो एक इसमें नेचुरल मेथड होता है और एक आर्टिफिशियल. आप ये एक्टिव और पैसिव की जगह यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि ये जो आप आर्टिफिशियली वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल हो गया, और नेचुरल क्या हो जाएगा. अगर किसी को से कोरोना हुआ तो कोरोना में क्या हुआ, कोरोना के केस में पैथोजन बॉडी में गया, एंटीबॉडीज वर प्रोड्यूस्ड एंड वी सर्वाइव्ड. ठीक है. तो वो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई. और ये जो आप कहते हैं कि आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है कि अब हमारे पास वैक्सीन है तो हमने वैक्सीन ले ली है ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही, तो ये हमने फोर्सफुली किया, तो ये हो गया आर्टिफिशियल. तो यहाँ पर आप इसके टाइप डिस्कस कर सकते हैं. क्लियर. 2 पॉइंट लिखिएगा क्योंकि देर आर only 2 marks for this. You will get 1 for each difference. Section C में आ जाते हैं. 7 questions of 3 marks. Total will be 21. Clear? 21 marks के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं. हर क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 मिनट देने हैं आपको, उससे ज्यादा नहीं. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर क्वेश्चन पेपर. सो अगर 5 मिनट भी आप दे रहे हैं तो 7 क्वेश्चन है, 35 मिनट्स तो आपको यहीं लग जाएंगे. और ये सबसे लॉन्ग वो कह सकते हैं सेक्शन है जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा.
45 मिनट्स यहाँ पे आप ले लीजिएगा। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते, मैक्सिमम 35 से अगर आपको मूव करना है 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। डिस्क्राइब एनी 3 कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। यहाँ पर आपको सेंटेंस वो यूज करने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, लाइक हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। अगर आपको पता होगा तो वी वर यूजिंग हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। तो पहला पॉइंट ले लीजिएगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। इसमें आपको डिस्कस करना है कि जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि धीरे धीरे क्या है, हम लोग अपना अर्बनाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट को काटते चले जा रहे हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटा गया है फॉर सोयाबीन कल्टीवेशन। एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दीजिए। दूसरा आपका है ओवर एक्सप्लॉइटेशन व्हेन नीड बिकम्स ग्रीड। डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। स्टेलर सी काऊ है, डोडो है, दीज स्पेशीज बिकेम एक्सटिंक्ट जस्ट बिकॉज इट वाज ओवर एक्सप्लॉइटेड। आपका पैसेंजर पिजन अब देखने नहीं मिलता है बिकॉज यहाँ पर हमने उनको जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया, उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया। यही रीजन है कि बहुत सारे एनिमल्स पे भी उनकी हंटिंग और पोचिंग पे क्या लग गया है, बैन लग गया है। थर्ड हम ले सकते हैं एलियन स्पेशीज इन्वेजन। एलियन स्पेशीज इन्वेजन, अब ये आपके बुक में इस क्वेश्चन पेपर में ही ये आंसर दिया हुआ है, नाइल पर्च वाला। रीजन एसेशन में था आपके पास कि अगर नाइल पर्च को हमने डाला है लेक में तो उसको डालने से बहुत सारे हमारे कैटलेट फिशेस जो हैं 200 से ऊपर कैटलेट फिशेस क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट। तो आप क्वेश्चन पेपर से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एंड फॉर ईच सेंटेंस यू विल बी गेटिंग 1 मार्क्स, सो 1 + 1 + 1। क्वेश्चन 23 पे आ जाते हैं। Can a plant flowering in Mumbai be pollinated by the pollen grains of the same species growing in the New Delhi? Provide explanation। क्या पूछ रहा है कि आपको pollen grains को import करके लाना है और ला करके उस desired variety of pollen grains से आपको किसी एक particular female plant को pollinate करवाना है। तो ये actually आपसे पूछ रहे हैं artificial हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ आप यस लिख के छोड़ दीजिएगा और एक्सपेक्ट करिएगा कि आंसर मिल जाए, मार्क्स नहीं मिलेगा। यस पे हो सकता है हाफ नंबर मिल जाए, लेकिन पूरी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करनी है, एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग जो प्रोसेस हम लोग करते हैं उसके स्टेप्स भी एक्सप्लेन करने हैं। कीप इन माइंड ये लॉन्ग क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वेदर दे विल आस्क यू डायग्राम और नॉट, दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन और नॉट, यू हैव टू एक्सप्लेन। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि हर क्वेश्चन को 5 मिनट दीजिए और 45 मिनट्स मैक्सिमम लीजिए, क्योंकि दिस इज द सेक्शन वेयर यू विल स्कोर गुड मार्क्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एक्सप्लेन करना है कि मुंबई से पॉलन ग्रेन लाए गए हैं। उसको लाने के पहले जो आपका फीमेल फ्लावर दिल्ली में है उस फ्लावर का अगर वो बाइसेक्सुअल है तो उसमें से आप एंथर को रिमूव कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। फिर कवर कर देंगे, दैट इज बैगिंग। फिर कवर हटा के जब पॉलन ग्रेन्स अवेलेबल होंगे, स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, आप डस्ट कर दीजिए मुंबई के पॉलन ग्रेन्स ला करके, फिर उसको कवर कर देंगे, बैगिंग करेंगे, तो यू विल गेट योर डिजायर्ड प्लांट। ये 4 स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, 2 नंबर आपको यही मिल जाएंगे। फिर है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ पिस्टल वेयर पॉलिनेशन हैज सक्सेसफुली अकर्ड। Label the part involved in transferring the male gamete to the desired destination। यहाँ पे आप 1.5 मार्क्स ले लीजिए, 1.5 and 1.5, क्योंकि जब आप डायग्राम बनाते हैं तो वो 3 नंबर 2 नंबर से कम में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सर्टेन स्पेसिफाइड लेबलिंग वो पूछ रहा है। तो इफ यू रिमेम्बर दिस डायग्राम, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट। इस डायग्राम में पूछ रहा है जहां पर पॉलिनेशन हो गया है तो इसके अंदर क्या होता है आपको पता है, ओवरी है, ओवरी के अंदर आपके पास ये एक रफ डायग्राम है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर फिर आपके पास क्या है, एम्ब्रियो सैक है। तो आपको ये क्लियर बनाना है तीनों चीजें और लेबल कर देना है कि भाई ये ओवरी है, ये ओव्यूल है और ये एम्ब्रियो सैक है। अब पॉलन ग्रेन्स जो है इट इज मूविंग फ्रॉम द टॉप। जब पॉलन ग्रेन्स मूव कर रहे हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स आपको कहाँ पे मूव करेंगे, इट विल बी मूविंग एट द स्टिग्मा। इस पॉलन ग्रेन से ये ट्यूब बन रही है, स्टिग्मा से होते हुए आपका पोरोगैमी करते हुए कहाँ रिलीज हो गया, ये रिलीज हो गया इन केस ऑफ
एम्ब्रियो सैक। अब वहां पे यहाँ पर एक एग एपिलेटस में एग होगा और यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन, इन्होंने क्या बोला है, वेयर पॉलिनेशन हैड सक्सेसफुली अकर, मतलब आपको सिर्फ दिखाना है कि पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं पूछ रहा है। तो पूरा एम्ब्रियो सैक आप जैसे बनाते हैं नॉर्मली, दैट एम्ब्रियो सैक यू हैव टू मेक ओवर हियर। चलाजा साइड पे आपके पास 3 एंटीपोडल्स हैं, नीचे 2 सिनर्जिड हैं, बीच में एग है और यहाँ पर ये आपका सेंट्रल न्यूक्लियस है, सेंट्रल सेल है विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर लेबलिंग आपको करना होगा कि ये क्या है जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। ये हो जाएगा आपका पॉलन ट्यूब। ये क्या है, ये तो रिजेक्टेड पॉलन ग्रेन है, इसको लिखिएगा पॉलन ग्रेन। उसके बाद जैसे मैंने नीचे बताया कि सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर जो वो क्या है, दैट इज ओवरी। उसके अंदर क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या है आपका एम्ब्रियो सेल। तो वो चीज आपको बनानी है यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट वी आर मूविंग विद, ये वाला ओवरी हो जाएगा, ये ओवरी है, बीच वाला ओव्यूल हो गया और सबसे नीचे जो अंदर तक गया है वो क्या है, दैट इज एम्ब्रियो सैक। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इट इज सेइंग दैट we have to here don't have option, so be very careful. What do Y and B stand in? YAC and BAC. Yeast artificial chromosome, bacterial artificial chromosome. Simply नाम लिख दीजिए, you will get half mark. Used for DNA sequencing in Human Genome Project. Mention their role in the project. अब यहाँ पर एक नंबर आपको यहाँ पर I think या हाफ नंबर देगा। इसके लिए रोल ऑफ द प्रोजेक्ट, इसका काम क्या है, ये एज अ वेक्टर यूज होते हैं इन जेनेटिक्स। तो एक शब्द लिख दीजिए वेक्टर, यू विल गेट 1.5 मार्क। राइट द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन जीनोम दैट कोड फॉर द प्रोटीन एंड द परसेंटेज ऑफ डिस्कवर्ड जीन हुज फंक्शंस आर अननोन। ठीक है, तो टोटल 100% हमारा जो डीएनए है उसमें से सिर्फ 2% ऐसा है विच इज कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड which can code for the protein। तो ये सिर्फ 2% डीएनए है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है। बाकी द परसेंटेज ऑफ डिस्कवर्ड जीन हुज फंक्शंस आर अननोन, अभी भी 50% जीन्स ऐसे हैं जिनके विषय में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो दैट यू हैव टू सी। नेक्स्ट वी आर मूविंग अप with the expand the term SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो सिर्फ आपको एक नंबर के लिए इसको एक्सपेंड कर देना है, क्या लिखना है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर, बस इसके लिए आपको एक नंबर मिल जाएगा। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ओवम फ्रॉम द oogonia। तो पूरा प्रोसेस क्या एक्सप्लेन करने बोल रहे हैं आपको, दे आर एक्सप्लेनिंग यू टू, दे आर आस्किंग यू टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो oogenesis में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि यू आर फर्स्ट हैविंग द ओगोनियम which is dividing by mitosis and increasing its number, then this oogonium will form primary oocyte। दिस प्राइमरी oocyte, यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि प्राइमरी oocyte फिर जो है दैट विल बी अरेस्टेड in the embryonic condition and it will start developing the first layer of granulosa, फिर second layer of granulosa, फिर antrum बनता है। तो primary follicle किस में convert हो जाता है, फिर it is converted to secondary follicle। secondary follicle के बाद फिर वो convert होता है tertiary follicle। अब जो तुम्हारा tertiary follicle है, tertiary follicle के अंदर तुम्हें पता होगा कि antrum है। antrum के बाद वहां साइड में छोटा सा न्यूक्लियस है, वो अभी भी तुम्हारा क्या है, प्राइमरी oocyte है। जब इसमें meiosis 1 कंप्लीट हो जाता है देन इट विल बी प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी oocyte। और जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनता है तो फिर आपका ये जो टर्शरी फॉलिकल है, इसको हम टर्शरी फॉलिकल नहीं बुला के क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाने लगते हैं ग्राफियन फॉलिकल।
तो जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक लेयर डेवलप होती है जिसमें आपको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जोना पेल्लुसिडा। तो आप चाहे तो ये पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करें और नहीं तो डायग्राम बना के एटलीस्ट स्टेजेस एक्सप्लेन कर दीजिए कि ओगोनियम क्या है, प्राइमरी oocyte क्या है, सेकेंडरी oocyte कहाँ है, फिर सेकेंडरी oocyte के बाद तुम्हारा वहां पर फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, वो भी एक्सप्लेन करना है। एंड देन सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस 2 कंप्लीट करता है तो आपके पास एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और ये जो मिलेगा ये आपका ओवम बनता है। तो ये एटलीस्ट डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो वो पूरा फॉलिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो भी एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर, राइट। तो यहाँ पर 1.5 मार्क आप ले लीजिए डायग्राम के लिए एंड 1.5 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन एडेप्टिव रेडिएशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? व्हेन एनी group of organisms are originated at a particular place but radiating from one point radially, it is literally radiating to the different geographical areas, then it is called as adaptive radiation. Now when we talk about adaptive radiation we will be having examples also. Cite an example, तो एक नंबर आपको मिल जाएगा इसके लिए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं explain the adaptive radiation, एक नंबर। Cite an example where more than one adaptive radiation have occurred in isolated geographical area. आपको डार्विनियन फिंचेस का एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं, मार्सुपियल्स एडेप्टिव रेडिएशन जो हुआ था वो एग्जाम्पल ले लेंगे। नेम द टाइप ऑफ इवोल्यूशन योर एग्जाम्पल डिपिक्ट एंड व्हाई इट इज नेम्ड सो। कैसा इवोल्यूशन शो करता है एडेप्टिव रेडिएशन? एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब हो जाता है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट होकर के डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं, दे आर डेवलपिंग डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। बहुत सारे मार्सुपियंस का डायग्राम्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो ये एक पॉइंट से निकल करके क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। तो दिस काइंड विच काइंड ऑफ इवोल्यूशन दे आर शोइंग, तो यहाँ पर आप डाइवर्जेंट बोल सकते हैं कि एक पॉइंट से निकल करके ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में जा रहे हैं, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, एक्सप्लेन द बेसिस ऑन विच जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक वर्क। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक किस बेसिस पे काम करती है? हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, तो उसमें हम लोग चार्ज के बेसिस पे उस डीएनए को सेग्रीगेट करते हैं, उनके फ्रैगमेंट कट करते हैं बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज इट विल बी सेपरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस एगरोज जेल। तो इसमें जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं और जो हेवियर फ्रैगमेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे मूव करते हैं ऑन द ऑपोजिट पोल, राइट। एंड देन यहाँ पर एक डाई हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है ETBr। क्या है ये? इथिडियम ब्रोमाइड, when exposed under UV rays कौन सा कलर शो करता है? ऑरेंज कलर। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। राइट एनी 2 ways बाय विच द प्रोडक्ट ऑब्टेन कैन बी यूटिलाइज। तो 2 ways बस लिखने को बोल रहा है, देखो एक्सप्लेन नहीं करना है, तो हाफ मार्क यहाँ मिल जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस जो एक्सप्लेन करेगा ये 2 नंबर का है। तो यहाँ पर आप चाहें तो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो डायग्राम दिया हुआ था वो डायग्राम भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके से वो जो प्रोडक्ट आपको मिला, क्या मिला? इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको डीएनए। तो या तो इस डीएनए को आप यूज कर लीजिए डायरेक्टली इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्लाज्मिड में अटैच करके टू गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट, और या फिर दिस डीएनए कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ PCR to increase its number, right? So these 2 words you have to write, you will get answer. Why the lymph nodes and bone marrow are called lymphoid organs? Explain the function of each one. तो इनको lymph node और lymphoid organ क्यों कहते हैं, इसका 1 नंबर हो गया। इनके दोनों के फंक्शन आप डिस्कस करिएगा तो 1+1। These are called as lymphoid organs because they are responsible for production of our WBC, fighting with antigen and antibody. So these are the part of our lymphatic system, that's why called as lymphoid organ। जहाँ पर जो lymph node है वो secondary lymphoid organ है और जो bone marrow है वो primary lymphoid organ है। प्राइमरी इसलिए है क्योंकि इन केस ऑफ बोन मैरो एज वी नो प्रोडक्शन ऑफ WBC टेक्स प्लेस। तो जो WBCs हमारे प्रोड्यूस होते हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होकर के फिर माइग्रेट करते हैं, वहाँ उनका इस पे कह सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन एंड मैचुरेशन होता है। मैचुरेशन के बाद हमारे लिम्फ नोड्स में
एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन के साथ ही अगर कोई पैथोजन बॉडी में फिर से इंट्रोड्यूस होता है, आपके पास वैक्सीन है, आपने एंटीबॉडीज डेवलप कर लिए, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स था। अब जब वही सेम पैथोजन विल अगेन एंटर इनसाइड द बॉडी, तो हमारे मेमोरी सेल्स जो डेवलप हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, वो क्या करते हैं, वो इन पैथोजेंस को किल करने की कोशिश करते हैं हमारे टॉन्सिल्स में, लिम्फ नोड्स में। इसलिए जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर्स आर यूजुअली चेकिंग द टॉन्सिल्स। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स में हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, इसलिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जहां पर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, यानी फाइटिंग चलती है यहाँ पर। ठीक है, अगर हमारे एंटीबॉडीज स्ट्रॉन्गर हैं देन एंटीजन सफिशिएंट है तो वी विल रिकवर, अदरवाइज वी विल फॉल सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केस स्टडी बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक, जो वैक्सीन आपने ली है वही बीमारी से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ पैथोजन स्पेसिफिक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ठीक है, आपने जो वैक्सीन लिया है उसके मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाएंगे। व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, आपने टाइफॉइड का वैक्सीन लिया तो टाइफॉइड के पैथोजन साल्मोनेला टाइफी से ही आपको बचाएगा। ठीक है, इलेक्ट अ सेकेंडरी इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, बिल्कुल ठीक बात है, अभी मैंने आपको बताया था। नेम द टू लिम्फोसाइट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए आपके पास दो लिम्फोसाइट्स, दो तरह के आपके पास है। एक लिम्फोसाइट होता है जिसको आप बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, ये क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट, जो कि सेलुलर सीएमआई, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, अगर आपको पता होगा फैगोसाइटोसिस करता है। क्या करता है, फैगोसाइटोसिस, यानी जर्म्स को किल कर देता है, जस्ट लाइक अमीबा खा जाता है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, ये क्या है, H2L2 आपको अगर याद होगा, हेवी चेन और लाइट चेन, ये डायग्राम वाई शेप एंटीबॉडी का है। ठीक है, तो यहाँ पर दो लिम्फोसाइट्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये दोनों एक एक नंबर का हो गया, और डायग्राम आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये एक नंबर है। थोड़ा सा एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 3, अच्छा वन मोर क्वेश्चन इज देयर, तो वन ही है मार्क्स उसका। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन हु हैड सफर्ड फ्रॉम द चिकन पॉक्स, इस बीमारी के बारे में आपने सुना होगा कि अगर एक बार हो जाती है तो फिर ये डिजीज दोबारा नहीं होती है। इन देयर चाइल्डहुड मे नॉट कॉन्ट्रैक्ट द सेम डिजीज इन द एडल्टहुड, दोबारा नहीं होगी। एक्सप्लेन गिविंग रीजन द बेसिस ऑफ सच इम्यूनिटी, वो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप हुई है इसमें। तो यहाँ पे आपने एक इम्यूनिटी को एक्वायर किया है, क्या किया है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन क्या आपने वैक्सीन लिया था, नहीं, वो सफर किया है, यानी पैथोजन बॉडी में गया, तो कौन सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की और ये लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी सेल्स डेवलप करते हैं, इसलिए इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि जिसको एक बार चिकन पॉक्स हो गया है उसको दोबारा होगा। होप इट इज क्लियर। एक नंबर के क्वेश्चन में बस ये एक सेंटेंस लिखना है, नेचुरली अकर्ड एक्टिव इम्यूनिटी विच विल डेवलप द लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी सेल्स। थोड़ा सा एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल गिव यू 1 मार्क ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अभी मैंने डिस्कस किया है, इट विल बी सेम आंसर, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब आपका आता है ट्रांसक्रिप्शन से एक डायग्राम है, ध्यान से सुनना है इसको, और कैसे लिखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड of DNA into RNA is called as transcription। तो ये तो क्लियर हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम है। It is mediated by RNA polymerase, एंजाइम भी दे दिया, RNA polymerase है। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट है तो उसके न्यूक्लियस में होगा, प्रोकैरियोट है तो साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन सेगमेंट ऑफ DNA and only one of the strand is copied to RNA। आपको पता होगा ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है वो आपका क्या कहलाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसकी पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और नीचे वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, कोडिंग स्ट्रैंड है। तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है जिसको आप टेम्पलेट बोलते हैं,
ये टेम्पलेट स्टैंड से ही एक स्टैंड ही है जो कॉपी होता है, विच इज एक्चुअली एग्जैक्टली सेम एज द कोडिंग स्टैंड ऑफ लाइक मैसेंजर आरएनए जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पर इस प्रोसेस के बाद, ये मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है, आप देख रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर आपको याद होगा तो ये जो प्रोड्यूस होगा वो क्या है, अगर यूकैरियोट है तो एचएनआरएनए प्रोड्यूस होगा और अगर प्रोकैरियोट है तो मैसेंजर आरएनए। तो हम दोनों ही ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं, हेटेरोजेनस आरएनए as well as messenger RNA depending upon condition. In transcription, only one segment of DNA is copied to RNA. ठीक है, transcription mainly consists of 3 steps. We know that 3 steps. One of the step is given below. कौन सा step है, ध्यान से देखो, हमारा RNA बन चुका है, डिटैच हो चुका है। तो कब डिटैच होता है, जब हमारे RNA पॉलीमरेज में रो फैक्टर नाम की चीज अटैच होती है। ठीक है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ABC है क्या। आइडेंटिफाई द गिवन स्टेप, ये कौन सा स्टेप है, तो आपको समझ में आ जा रहा है ये स्टेप टर्मिनेट हो रहा है। कौन सा स्टेप है ये, टर्मिनेशन है। बी क्या है आपका, बी मैंने बताया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, और सी क्या है, सी आपका रो फैक्टर है। ठीक है, तो ये हाफ 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 1.5 नंबर ले लीजिए इसमें, इससे कम तो हो नहीं सकता है। What happen if C is not available in the above process? अगर रो फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, in that case there will not be any termination, प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, what changes will takes place in A after the completion of the above process in eukaryote? देखो मैंने हिंट दिया था कि if this process is occurring in the eukaryotic organism, तो हमें mRNA नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हेट्रोजिनस आरएनए मिलेगा, जिसका मतलब क्या है कि ये ऐसा आरएनए है जिसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होंगे, यानी आपको स्प्लाइसिंग की जरूरत पड़ेगी, एक्सॉन्स भी बनेंगे और इंट्रॉन्स भी बनेंगे, तो एचएनआरएनए का प्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट, जो फिर इट इज अंडरगोइंग टू द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग या आरएनए प्रोसेसिंग टू गेट एमआरएनए। जब ये स्प्लाइसिंग हो जाएगी तो एचएनआरएनए से आपको क्या मिलता है, एमआरएनए। तो ये आपको व्हाट चेंजेस विल टेक्स प्लेस, मतलब पूरी प्रोसेस आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी आप 1.5 मार्क ले लीजिए। 1.5 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 1 मार्क ही ले लो इसको, ये 1 मार्क हो जाएगा और ये 1 मार्क। ठीक है, 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये roughly I am telling you because in CBSE corrections when we are getting marking scheme of this kind only, which we have to follow throughout the country. So you have to go in that way. Explain briefly the previous step, ये थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका। Explain briefly the previous step or the given figure that is taking place in prokaryote। ये पूरे क्वेश्चन का एक सेकंड ऑप्शन आपको दे दिया है कि या तो आप ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अगर आप कंफर्म है, जिसमें स्टेप मार्किंग है, आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे, और या तो फिर 2 और स्टेप एक्सप्लेन कीजिए जिसमें आपको इनिशिएशन और एलोंगेशन डिस्कस करना है, इनिशिएशन एंड एलोंगेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो जो डायग्राम दिया है, डायग्राम ड्रॉ करके आप दोनों स्टेप्स को और एक्सप्लेन करेंगे, राइट। ये पूरे 3 क्वेश्चन का अल्टरनेटिव है, या तो वो 3 करने हैं या तो फिर ये करना है। आ जाते हैं सेक्शन ई में। Actually it is a 5 mark question, here they have adjusted somehow in the 3 mark question making it case study, right। next हम लोग आ जाते हैं 4 limbs, ये 5 mark questions में आ गए हैं, जहाँ पर आपको 3 questions मिलेंगे और 5 मार्क्स जो कि 15 नंबर के हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप कितना टाइम दीजिएगा। 5 मार्क के एक क्वेश्चन पे अगर आप 15 मिनट देते हैं तो ये सेक्शन भी आपको 45 मिनट में मैक्सिमम खत्म कर देना है। ठीक है, 4 limb of the given animals have the same structural plan. Such organs have similar developmental pattern and they develop in related organism, but these do differ morphologically. What type of evolution and structure, कौन सा evolution और कौन सा structure is exhibited by the organism given in the figure? Man, चीता, whale and bat, इनके 4 लिम्ब आपको दिए गए हैं। तो as you know we all are having similar number of bones, similar origin and almost similar structure in internal way, right, but we are performing entirely different function। तो ये हमारे कौन से organ हो गए, ये हो गए homologous organ। तो homologous organ are the organ which are having same internal structure and origin but they perform entirely different function। तो homologous organ हो गया।
सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्लियर है आपको? ये पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन, तो ये आपका होमोलोगस ऑर्गन जो होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सॉरी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है कि ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड, ये फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बीइंग है, तो हाफ मार्क इसके लिए, हाफ मार्क इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉगी एंड होमोलॉगी गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच, एक प्लांट का एग्जांपल देना है और एक एनिमल का। तो एनालॉगी क्या है? व्हेन दे आर हैविंग डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन but they are performing same function, this phenomenon is called as analogy। homology हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। तो एनालॉगी में आप प्लांट का एग्जांपल क्या ले लीजिएगा? इन केस ऑफ एनालॉगी यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। होमोलॉगी में आपको एक एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ पर ले सकते हैं थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा होमोलॉगी में। तो जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं, ट्राई टू गिव दोज एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हाफ मार्क इसके लिए और हाफ ऑफ मार्क इसके लिए, तो ये हो गया 2 मार्क्स। हाउ एनालॉगी एंड होमोलॉगी कंसिडर्ड एन एविडेंस टू सपोर्ट द इवोल्यूशन, ये भी आपका हाफ ऑफ मार्क हो जाएगा। एनालॉगी कैसे शो करता है? पैरेलल इवोल्यूशन शो कर रहा है, बिकॉज दे आर अडेप्टिंग, उनका स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है बट दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, तो समवेयर अडेप्टेशन इज देयर, ठीक है। होमोलॉगी शो करता है कि ठीक है एंसेस्टर सेम था बट डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन वी आर अडेप्टेड टू डिफरेंट फंक्शंस, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। तो डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, या तो वो क्वेश्चन कीजिए और या फिर इवोल्यूशन का ये क्वेश्चन कीजिए जिसमें मोर स्टेप मार्किंग है, ठीक है। रेफर टू द गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ह्यूमन इवोल्यूशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक कहानी आपको समझा रहे हैं, fossils evidence clearly indicate that origin of man occurred in the Central Asia। तो कहाँ origin हुआ था? Central Asia में। About 15 million year ago, primates called Dryopithecus and Ramapithecus were existing, ठीक है। Among their stories of evolution, the story of evolution of modern man appear to be the parallel evolution of human brain and their gut। जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे हमारे कैरेक्टर्स इवॉल्व होते चले गए हैं, राइट। तो पहला है वेयर डिड ऑस्ट्रेलोपैथिकस इवॉल्व, तो आपको तो देख ही दिया ईस्ट एशिया में था, यहाँ सेंट्रल एशिया दिया है, तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस कहाँ इवॉल्व हुए थे? ईस्ट एशिया में। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जावा मैन? होमो इरेक्टस कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज होमो इरेक्टस, ठीक है। नेम द फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड, ठीक है। मेंशन हिज फूड हैबिट एंड ब्रेन कैपेसिटी, 680 से 800 तक ब्रेन कैपेसिटी थी, अगर आपको याद होगी होमो हैबिलिस की। होमिनिड की बात कर रहा है, तो होमिनिड क्या थे आपके? ये थे होमो हैबिलिस, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रामापिथिकस एंड निएंडरथल, रामापिथिकस और निएंडरथल मैन के दो दो फीचर्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देने हैं। क्रेनियल कैपेसिटी डिस्कस कर लीजिएगा और कोई एक कॉमन फीचर के रामापिथिकस जो है वो आपके मोर मैन लाइक थे, वो बाइपेडल लोकोमोशन उन्होंने शुरू किया था, और निएंडरथल मैन हमारे मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स थे जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी थी। तो इसकी स्टार्टिंग ले लीजिएगा, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी एक बार देख लीजिएगा, ये रामापिथिकस की क्रेनियल कैपेसिटी है, राइट, दैट वी हैव टू सी। और फूड हैबिट्स वगैरह भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जा रहे हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जिसमें आप चारों फेजेस अगर लिख देंगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे 5 मार्क्स में। क्यों मिल जाएंगे? बिकॉज आप यू आर डिस्कसिंग द मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज एंड देन ल्यूटल फेज। तो इन चारों फेजेस के लिए हाफ हाफ मार्क आपको मिल जाएंगे। एंड देन इफ यू आर एक्सप्लेनिंग देम ब्रीफली कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसमें हमारे हार्मोन लेवल्स जो है, हार्मोन की बात कर रहे हैं तो हार्मोन की एक लाइन लिख दीजिए कि पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन दोनों बेस पे रहते हैं, बिकॉज देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम, प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत डाउन होता है, एंडोमेट्रियम टूट जाता है एंड अनफर्टिलाइज्ड एग इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी।
फिर हम मूव करते हैं सेकंड फेज में, फॉलिकुलर फेज। अगर आपको याद होगा, यहाँ साइकिल बना सकते हो तो बिल्कुल बनाइएगा, अदरवाइज एटलीस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। ओवेरियन, ये आपका फॉलिकुलर फेज में मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल है, जहाँ पर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लग जाता है, ठीक है। फिर LH सर्ज होता है, LH सर्ज के बाद आपका ओव्यूलेटरी फेज आता है। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, ओवम रिलीज हो गया। अब जब ओवम फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होगा। यहाँ पर क्या दिखाना है हमको कि जब ओवम रिलीज हो गया तो जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, रेस्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उस ग्राफियन फॉलिकल ने रीऑर्गेनाइज करके येलो मास बनाया। जैसे जैसे येलो मास बढ़ेगा, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता चला जाएगा, एंड प्रोजेस्टेरॉन विल लीड टू द रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो फ्लो चार्ट के माध्यम से यू ट्राई टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज अ वेरी स्कोरिंग एंड गुड क्वेश्चन इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। क्योंकि अगर यहाँ पर आप हार्मोनल कॉन्सेंट्रेशन या उसका डिस्कशन नहीं करते हैं तो आपको 2 नंबर से ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। इससे तो फिर अच्छा होगा कि यू गो फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अप टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेल। बहुत इजी है, दोनों चैप्टर रिप्रोडक्शन से, दोनों क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से ही है। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपका जो मेगास्पोर मदर सेल ओव्यूल के अंदर है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, वो 4 मेगास्पोर बनाते हैं, इसमें 3 डीजनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल है। तो ओव्यूल के अंदर आपको ये दिखाना है कि 3 डीजनरेट कर रहे हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर है। फिर ये फंक्शनल मेगास्पोर में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आप एक्सप्लेन करेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट में आपके पास पोल मेंशन करना है, ये चलाजल पोल है, ये माइक्रोपाइलर पोल है। एक न्यूक्लियाई से 2 बने, 2 से फिर आपको दिखाना है 4 बने, 4 से फिर आपको दिखाना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बने। उसके बाद फिर रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट में एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएंगे, 3 ऊपर रह गए और 3 नीचे रह गए। उसके बाद देयर विल बी वॉल फॉर्मेशन। तो वॉल फॉर्मेशन में आपको चलाजल पोल पे 3 एंटीपोडल, बीच में सेंट्रल सेल, यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स हैं और ये बीच वाला क्या है, एग एपैरेटस। तो दिस काइंड ऑफ डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ। देखो यहाँ पूछ भी लिया कि आपको यहाँ पर, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन ये वाला होगा और 2 नंबर का ये होगा, तो यू हैव टू गो इन डिटेल, डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन करना है। फिर ड्रॉ डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर डाइकॉट। अब यहाँ ध्यान से पढ़ना, मुझे भी लगा था एम्ब्रियो सैक पूछ रहा है, ठीक है। मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो बनाना है। जब डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, कि आपके पास ये सस्पेंसर है, हॉस्टोरिया है, हाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस के बाद डाइकोटिलिडनस है, तो आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है। ये रेडिकल हो गया, ये तुम्हारा प्लिम्यूल हो गया, ये दोनों कॉटिलिडन्स हो गए, ठीक है। ये सस्पेंसर हो गया, ये हाइपोफाइसिस हो गया और ये आपका हॉस्टोरिया हो गया। तो इस तरीके से इतनी लेबलिंग आप कर देंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स ओवर हियर। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इकोराई। अगेन प्लाज्मिड से है। हाउ डज इकोराई डिफरेंट फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस। इको R1, इकोराई बोल रही हूँ मैं, इको R1। इको R1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि GAATTC, अगर आपको याद होगा, इसको हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। ये G और A के बीच में कट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इट इज कटिंग इन बिटवीन DNA। ये DNA के बीच में कट कर रहा है, तो ये एक एंडोन्यूक्लियस है। वेयर जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, इट इज ऑलवेज कटिंग ऑन द सिंगल। ये जो एंडोन्यूक्लियस है, इट इज ऑलवेज मेकिंग कट इन द सेंटर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA, और दोनों एक साथ कट करता है। लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो किसी एक स्ट्रैंड ऑफ DNA को कट करते हैं, वो भी कहाँ पे, कॉर्नर्स पे कट करते हैं। तो ये डिफरेंस है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का। फिर बोलता है इको हाउ इट इज डिफरेंट, तो इसको 1 नंबर ले लीजिए। इको R1 is used to cut a segment of foreign DNA and that of vector DNA to form the recombinant DNA। ये जो डायग्राम आपको मैंने पहले दिखाया था कुछ देर पहले, कि किस तरीके से आप उसको कट करिएगा और कैसे फ्यूज करिएगा, दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन डिटेल। क्लियर, कि आपने उसको कट किया है, फिर आपने उसको DNA लाइगेज के साथ फ्यूज कर दिया है, ये चीज आपको यहाँ पूरा डिटेल में
दिखाना पड़ेगा। ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है कि आपने यहाँ पर वेक्टर डीएनए लिया, फिर आपने फॉरेन डीएनए या डोनर डीएनए लिया, दोनों को आपने एक R1 से कट किया, कट करने के बाद आपको क्या मिले, स्टिकी एंड्स मिले, फिर आपने दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर ये नाम लिख दीजिएगा डीएनए लाइगेज। तो ये डायग्राम आपका जो कंप्लीट है वहाँ पर 3 नंबर के लिए हमको लगता है ये डायग्राम सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग to the last question, only another option of the last question. Right, so this we have finished almost. Segment mark the site where we were here somewhere, no, form a recombinant DNA. So this is of 2 marks, upper question 2 marks, lower question 3 marks. Now the last question, alternative, identify A and B in the following. ये क्वेश्चन भी आपका बायोटेक से ही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A और B क्या है। When we are talking about A, आपको दिया गया है GAATTC, अभी मैंने बात की थी, तो ये आपका पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है। ए क्या है यहाँ पर, ये आपका डीएनए का एक सेगमेंट है जिसको हम पैलेंड्रोम या पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। बी जो है, अगर आपको याद होगा कौन सा जीन है, ये है ORI, क्योंकि ये जो एरो दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि रेप्लिकेशन यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये ORI ही वो पॉइंट है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हो सकता है। ये ORI हो गया। तो आइडेंटिफाई A एंड B, इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलना चाहिए। राइट द टर्म्स गिवन टू A and C and Y। A और C को ऐसा क्यों बोला जाता है, आपको उसको एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन कर दीजिए कि A जो है वो न्यूक्लियोटाइड पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है। इट इज द सेम सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड विच इज रेड सेम ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। चाहे आप इधर से पढ़िए तो भी GAATTC है, इधर से भी GAATTC है, यानी इट इज द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड विच इज रेड सेम ऑन द DNA strand when the polarity is kept constant। 5 प्राइम से पढ़ रहे हो तो 5 प्राइम से ही पढ़ना है, ठीक है। नाउ C के बारे में पूछता है, आपका C क्या है, ये नीचे वाला जो पोर्शन दिया हुआ है, टर्म, वाई द टर्म गिवन A and C। A and C, A जो है आपका ये ऊपर का जो टेम्पलेट स्टैंड है वो है, और C जो है वो कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज दिखाना चाह रहा है, नहीं, ये A और C यहाँ पर ये एक डोनर का होगा, सॉरी करेक्टेड, एक डोनर का है और दूसरा वेक्टर या प्लाज्मिड का डीएनए है ना, इसको फ्यूज करना होगा बाद में, इसलिए आई हैव नॉट सीन इट कंप्लीटली, क्योंकि ये टूटा हुआ सेगमेंट आपको दिखा रहा है। तो एक डोनर है और एक प्लाज्मिड है, राइट। उसी में थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन PCR, मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस इन बायोटेक्नोलॉजी। तो PCR क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, 3 स्टेप होते हैं इसके, फिर रिमेंबर, एक होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, 60 to 80 डिग्री टेम्परेचर पे उसको हम हीट करते हैं, तो जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए के वो दूर दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एनीलिंग करते हैं, जहां पर स्मॉल सेगमेंट ऑफ प्राइमर इज अटैच नियर द 3 प्राइम एंड ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड। ऑलिगोसैकेराइड्स, सॉरी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं। एंड थर्ड में फिर हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन होता है, जहां पर हमारा टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है, थर्मोस्टेबल एंजाइम, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द न्यू डीएनए। तो एट अ टाइम फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट यू विल बी गेटिंग 2 न्यू डीएनए, फिर इसको नेक्स्ट रिपीट कर देंगे तो 4, फिर 8, so ऐसे मल्टीपल कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। I guess 1 mark should be there. Describe the role of heat, primers and bacterium thermocycliticus। यहाँ पर 3 अलग अलग चीजें हैं, तो तीनों के लिए एक नंबर है। हीट मैंने बताया 60 to 80 डिग्री टेम्परेचर है, which is responsible for separation of 2 DNA strands by breaking down of hydrogen bond in between। पूरा लिखना है। प्राइमर्स मैंने आपको बताया स्मॉल स्ट्रेच ऑफ RNA है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है ये प्राइमर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। एक्सटेंशन कहते हैं उसको यहाँ पर PCR में। तो ये जो है हमारे प्राइमर्स है विच विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। और लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट है एक्सटेंशन। यहाँ पर बैक्टीरिया, थर्ड स्टेप, तीनों अलग अलग स्टेप पूछ रहा है। ये डीनेचुरेशन है, ये एनीलिंग है, और ये एक्सटेंशन में थर्मस एक्विटिकस एक एंजाइम देता है जिसको हम बोलते हैं टेक पॉलीमरेज
मरेज, ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करता है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है जो कि basically responsible for synthesis of new DNA strand. So I hope we discussed it nicely, and if you will solve it, I'm sure you will get good marks. Thank you.